आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ड सैयद का ओरिएंटलिज्म। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड, जो हमने कल किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हमने पढ़ा था कि हाउ दे आर रीरीडिंग आवर लिटरेचर। आवर लिटरेचर मीन्स कॉलोनियल कंट्रीज लिटरेचर। सी ईस्ट एंड वेस्ट को डिवाइड कर दिया गया था। वी बिलोंग टू ईस्ट एंड दे बिलोंग टू वेस्ट, एंड व्हाट दे डिड, West did, they created us that we are other and we are inferior than those Western peoples. ठीक है? And what they did, first of all they read our literature. After reading our literature, they manipulated that literature. And because of that manipulation, our literature which we are reading to nowadays is not that much appropriate and the same which it was earlier. So the post-colonial studies, they are saying that we should not read our literature according to West. We should reread that literature and recreate that literature according to colonized people who are the real peoples who are living in those countries, not the West. Right now we are reading that literature according to the point of view of West. But what they are saying, according to post-colonial theory, that we should criticize those works which was written by West peoples and we should recreate those according to the East peoples, Eastern peoples, so that that mentality which was overpowered on us, that can be removed. Okay? This is the main idea of post-colonial theories. Okay, the reread that literature, recreate that literature or criticize that literature. The whole post-colonial theory is about this thing. ठीक है? And now Orientalism. What is Orientalism? Orientalism is a book written by Edward Said. ठीक है? Edward Said is known, or we can also say that he is the father of post-colonial theory. Why? Because in Orientalism book, जो एडवर्ड सैयद की बुक थी ओरिएंटलिज्म, इन दैट बुक ही इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द सेम आइडिया एंड ही गेव मोर अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी अबाउट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज. ठीक है? अभी ओरिएंटलिज्म में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पोस्ट कॉलोनियल जो हमारा लिटरेचर है, जो वेस्टर्न लोगों ने बाइनरीली डिवाइड कर दिया. बाइनरी डिवीजन मीन्स ईस्ट अलग है, वेस्ट अलग है, दे आर सुपीरियर, वी आर इंफीरियर एंड वी शुड मिनिमाइज दैट डिफरेंशिएशन. ठीक है? और वो डिफरेंस कब मिनिमाइज होगा? जब हमारी मेंटेलिटी में वो चीज मिनिमाइज हो पाएगी. आफ्टर दैट वी कैन मिनिमाइज दैट डिफरेंशिएशन ना. सो ओरिएंटलिज्म इज अ बुक by Edward Said and it was published in 1978, and in this book what he was saying that Western knowledge about East means Western peoples giving us knowledge about East. We are not getting it from ourselves. Western peoples are imposing that thing on us and we are taking that knowledge according to them only. So what is said in Orientalism, that we should रीड दैट थिंग. हमें फैक्ट्स को दोबारा पढ़ना चाहिए और उन फैक्ट्स को दोबारा जनरेट करना चाहिए सो दैट हम लोग क्या कर सकें, हम लोग अपने आप को ज्यादा प्रॉपरली स्टडी कर सकें. ठीक है? तो ओरिएंटलिज्म क्या था? ओरिएंटलिज्म का सेंट्रल आइडिया था कि वेस्टर्न जो नॉलेज है ईस्टर्न के बारे में जो जनरेट की गई है वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं. सिंपली देखो, हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर भी पढ़ा था कि जो वेस्टर्न ने है हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया कि जो ईस्टर्न के लोग हैं दे आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट सिविलाइज्ड इनफ कि वो किसी भी कंट्री को लीड कर पाए. ठीक है? तो जो भी ये चीजें हमारे ऊपर इम्पोज की गई, क्या ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड थी? फैक्ट्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं थी. तो जब वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं है तो मतलब वो चीजें इम्पोज की गई हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन मिथ ओनली. So if they are based on myth only, so we have to recreate them, we have to restudy them. The same in feminism also. The things which are imposed on us, those are not real. Those are mythical things. The same is post-colonial theory also, because Western हमारे ऊपर रूल करना चाहते थे. That's why उन्होंने हमारे लिटरेचर को पढ़ा और हमारे लिटरेचर को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि किस जगह पे इनके लूप होल है और कैसे हम इनके ऊपर रूल कर सकते हैं.
ठीक है, ये उन्होंने मेन आइडिया लगाया इस चीज का। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा ओरिएंटलिज्म में क्या कहा, सबसे पहली बात तो कि मिथ के ऊपर है, जो भी हमारी बाइनरी डिवीजन जो हमने पोस्ट कॉलोनियल में पढ़ी थी कि हमें अदर या हमें इंफीरियर बताया गया और उनको सुपीरियर बताया गया। एंड यहाँ पर ओरिएंटलिज्म के अंदर एडवर्ड सईद ने उसको दो अलग अलग नामों से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंट आर ईस्टर्न पीपल्स एंड द सेकेंड इज ऑक्सीडेंट कौन है, वेस्टर्न पीपल्स। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये इसे बाइनरी डिवीजन बोला। एंड बाइनरी डिवीजन इज नॉट गिवन बाय ईस्टर्न पीपल, दैट इज गिवन बाय वेस्टर्न पीपल। व्हाई दे हैव गिवन दिस बाइनरी डिवीजन? Because if they will show us that they are fundamentally and they are not civilized enough, so it means they are civilized. मीन्स उन्होंने हमें अपोजिट में डाल दिया, अगर हम इंफीरियर हैं तो वो सुपीरियर है। ठीक है, तो उन्होंने ये सिंपली ये कहा कि एक सबसे बड़ा पॉइंट जो वेस्टर्न्स कहते हैं कि जो ईस्टर्न लोग हैं ना, ईस्टर्न लोग समहाउ दे आर सिमिलर इन मैनी काइंड। ठीक है, एंड वेस्टर्न पीपल्स आर फ्रॉम मैनी काइंड डिसिमिलर फ्रॉम ईस्टर्न। ठीक है, वी हैव स्टडी दिस ऑल्सो इन पोस्ट कॉलोनियल। हमने पढ़ा था कि जो ईस्टर्न, उन्होंने क्या कहा कि ईस्टर्न कहीं ना कहीं उनकी जो रहने का या क्योंकि वो सब लोग बार्बरिक हैं, दे आर नॉट सिविलाइज्ड इनफ, तो वो कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। और जो वेस्टर्न्स हैं वो सिविलाइज्ड हैं, वो वाइट पीपल्स हैं एंड दे आर मेंट टू रूल ऑन ईस्टर्न, सो दे आर somehow similar in some kind। वो ईस्टर्न से डिसिमिलर है बिकॉज हम लोग उतने सिविलाइज नहीं है और वो लोग सिविलाइज। द सेम थिंग, द सेम पॉइंट इज गिवन इन ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ओरिएंटलिज्म में इसी चीज को मेन पॉइंट बना के एडवर्ड सईद ने कहा। ठीक है, एडवर्ड सईद की जो बुक है ओरिएंटलिज्म, उसको 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो ओरिएंटलिज्म है, कैसे ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट्स को डिवाइड किया गया है, उस चीज को पढ़ेंगे। मतलब यू कैन से एन इंट्रोडक्शन टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड वाले में कि कैसे उन्होंने हमारे लिटरेचर को मैनिपुलेट किया, कैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें आई और उनको डिफाइन अच्छे से करेंगे हम सेकंड पार्ट में। ठीक है, सो पहले कैसा था ये हम 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। बट इन द थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में वी कैन सी कि अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियल जो ओरिएंटलिज्म का क्या कंडीशन है नाउअडेज। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि एक तो जो हमारी धारणाएं चली आ रही, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी थिंकिंग अबाउट ईस्ट दैट इज गोइंग ऑन इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी, एक तो पॉइंट वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा अकॉर्डिंग टू टाइम एवरीथिंग चेंज। ठीक है, द सेम इज विद ओरिएंटलिज्म, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो चीज क्या है, अपने आप को बेटर या यू कैन से वर्स करती जा रही है। दैट थिंकिंग इज ओवर पावरिंग दैट थिंग। ठीक है, और व्हाई ही इज सेइंग दिस, बिकॉज एडवर्ड सईद इज अ पर्सन फ्रॉम इजराइल। वैसे वो अमेरिका में रहे, but he was born in Israel, and whenever he visited anywhere, he was having that thing that he was a Muslim, and everyone was saying that Muslims are terrorists and they are not good for anything. So उनके माइंड में ये थिंग आई कि that we are treating like this only because that mentality or that thing is imposed on us. So what he decided कि जो भी ये मेंटलिटी चली आ रही है, मैं वो उसने क्या लिखा है, मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, व्हाई दिस मेंटलिटी इज हियर एंड हाउ इट कैन बी चेंज। ठीक है, द सेम इज नाउ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करती जा रही है। ही गेव अस अ एग्जांपल, लाइक आप लोगों ने 11 का कुछ वो एक प्लेन क्रैश हुआ था जो मुस्लिम्स ने वो करवाया था। So after that crashing, yeah, after any activity, terrorist activity, everything is imposed on Easterns. The Eastern peoples are not civilized enough even now, and they are terrorists. उनकी countries में terrorist ही का ही birth होता है, and they are only good in this thing only. The same thing is earlier also. What they were saying
दैट दे आर एग्जैक्टिक हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा कलर्स को पसंद करते हैं, एंड दे आर टोटली लेजी एंड दे डोंट वांट टू डू एनी गुड थिंग इन देयर लाइफ, दे आर डूइंग द सेम थिंग, द बार्बरिक थिंग एंड दे आर नॉट सिविलाइजिंग। ठीक है, वो चीज हम पे इम्पोज की जा रही थी। द सेम इज राइट नाउ ऑल्सो, दैट थिंग इज इम्प्रूविंग, दे आर क्रिएटिंग दैट दे आर अ टेररिस्ट, they are so much uncivilized that in their countries only terrorists are come। ठीक है, तो वो चीज उन्होंने बताई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो बुक को कैसे स्टार्ट किया एडवर्ड सैयद ने सुना एक फ्रेंच जो था, या यू कैन से फ्रेंच एक जर्नलिस्ट था, वो वहां पर आया था, एंड हाउ ही इज प्रेजेंटिंग हिज कंट्री, जो इजराइल में जो जहां पर उसका बर्थ हुआ उस प्लेस को भी कैसे डिफाइन कर रहा था, ये सेइंग कि समहाउ ये पहले हमने डिस्कवर किया। ठीक है, तो व्हाट इज द थिंकिंग, ईस्ट वेस्टर्न्स मानते हैं दैट वी हैव डिस्कवर्ड ईस्टर्न्स, सो वी आर सुपीरियर टू देम। सो उसने क्या कहा, हाँ समहाउ इट इज राइट, बट इज दिस मेंटलिटी इज फेयर इनफ। सो इस पॉइंट को उठा के उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या उन्होंने डिवाइड कर दिया, दैट वी आर डिस्कवर्ड बाय देम ओनली। एंड उसने सबसे पहले तो माइकल फोकाल्ट जो है उनका एग्जांपल लिया, उनकी जो पावर एंड नॉलेज का जो पार्ट था उसको उठाया उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट को डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको पावर चाहिए, फोकाल्ट ने कहा था अपनी बुक में, इफ यू वांट पावर देन you have to overpower the knowledge of that country। ठीक है, मीन्स जब आप नॉलेज के ऊपर रूल कर सकते हो, only then you can rule on that country। so first of all आपको उनकी नॉलेज के ऊपर रूल करना है। if you know everything about that country then you can rule that country। so what Western did, they come to India and India, you can say any country, eastern countries में आए। first of all they read their literature, they read their basic roots, and after knowing those peoples they start ruling those peoples। ठीक है, नॉलेज ली पहले उन्होंने, देन पावर में आए। एंड सेकेंडली ये भी होता है, अगर कोई पावर में है तो वो पावर में होने के बाद हमारे ऊपर नई नई चीजें इम्पोज कर सकता है, हम उस चीज को ज्यादा जल्दी मानेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और वही पॉइंट किसने उठाया, एडवर्ड सैयद ने उठाया फोकाल्ट के वर्क से। ये आप लोगों ने लिख नहीं रखा है, सो यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग कि जो फोकाल्ट का था, पावर एंड नॉलेज का कंसेप्ट इसने उठाया था। ठीक है, पावर एंड नॉलेज का कंसेप्ट उठाया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहली बात तो फोकाल्ट का एग्जाम्पल थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे ग्रेमिक की वजह से। ग्रेमिक कौन था, अब ग्रेमिक ने क्या किया था, उन्होंने भी अपने एक बुक के अंदर, अपने नॉवल के अंदर ओरिएंट पीपल के बारे में एक आइडिया दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, फॉर वेस्टर्न पीपल्स के लिए ईस्टर्न क्या है, कैरियर है। ठीक है, कैरियर कैसे, सी देखो वेस्टर्न पीपल्स ने क्या किया, जब इंडिया में आए या किसी भी ईस्टर्न कंट्री में गए तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, दैट ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ईस्टर्न कंट्रीज के जो भी पीपल्स हैं दे आर बार्बरिक, बट देयर प्लेस वेयर दे आर लिविंग इट इज वेरी गुड। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं एंड बहुत सुंदर कंट्रीज हैं, बट दोज पीपल्स हु आर रूलिंग दोज कंट्रीज दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि वो उन कंट्रीज को लीड कर पाए। ठीक है, अब उन्होंने क्या कह दिया, वो कंट्री तो अच्छी है, मीन्स उन कंट्री से हमें फायदा हो सकता है अगर वहां पे सिविलाइज लोग रूल करें। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया उन्होंने। सो इट मीन्स उन्होंने क्या कहा, अगर हम इंडिया में जाएंगे या किसी भी ईस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो वी कैन सिविलाइज देम एंड वी कैन जनरेट मोर इकोनॉमिकल वैल्यू फ्रॉम दोज कंट्रीज। ठीक है, सो उनके लिए कैरियर कैसे हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सबसे पहले हमें सिविलाइज करना है, तो वो उनका एक काम हो गया। दूसरा, हमारी कंट्रीज से उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू जनरेट करनी है,
तो वो उनका दूसरा काम हो गया। तो मतलब वहां पे वर्क करना, उनको सिविलाइज करना और उनको इतना कैपेबल बनाना कि वो उस कंट्री से ज्यादा अच्छी इकोनॉमिकल चीजें निकाल सके, दैट इज अ काइंड ऑफ कैरियर फॉर वेस्टर्न पीपल्स। सो ईस्ट उनके लिए क्या हो गया, एक कैरियर हो गया। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एडवर्ड सैयद ने अपने वर्क में कहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या उठाया उन्होंने, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कार्ल मार्क्स का उठाया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो ईस्टर्न पीपल्स हैं दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू, बताया था आप लोगों को, क्या बताया था उसने, कि वो जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, बताएगा कौन, बताएगा, सिंपली कार्ल मार्क्स कौन है, इकोनॉमिक्स है। उसने क्या, कौन सी थ्योरी दी है हमें, कौन सी थ्योरी दी है, सोशलिज्म, सोशलिज्म, सोशलिज्म। उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी किसने दी थी, कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरिज्म। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी हम जो लिटरेचर में पढ़ते हैं वो कार्ल मार्क्स के थ्रू आई है ना। तो कार्ल मार्क्स कौन हो गया, इकोनॉमिक्स था। उसने इकोनॉमिक को स्टडी किया है जब हमारे जो सबसे ज्यादा वर्स्ट टाइम था, जब क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम था, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम था उसकी स्टडी की उसने, मार्क्सिस्ट थ्योरी निकाली, उसके अंदर उसने क्या कहा, उसने ये बताया इकोनॉमिकली अगर कोई वीक है या इकोनॉमिकली जितना गैप बढ़ता जाता है उतना ही उनका, जितना भी उनके ऊपर शोषण यू कैन से वो ज्यादा होता जाता है। ठीक है, द सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने ये कहा कि दीज पीपल्स आर नॉट कैपेबल इनफ कि ये अपने आप को प्रेजेंट कर सके, दैट्स व्हाई वेस्टर्न्स हैव टू प्रेजेंट देम। उन्होंने ये कहा था किसानों के लिए, ठीक है, जो उस टाइम जो भी बहुत ज्यादा वीकर कंडीशन में थे उनके लिए कहा था। बट एडवर्ड सैयद ने क्या किया, ही टुक दैट कोटेशन and what he did, he presented is that it is said to easterns। अब वेस्टर्न्स ने कहा है दे आर नॉट कैपेबल इनफ इकोनॉमिकली, आप वीकर कह लो, या जो बार्बरिक पीपल्स हैं दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए कहीं पर भी, दैट्स व्हाई वी आर प्रेजेंटिंग देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, सो क्या कहा, मतलब इतने सिविलाइज ही नहीं, इतना उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है कि दे आर एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ, है ना। तो ये चीज उन्होंने प्रेजेंट की। तो इसी चीज को एडवर्ड सैयद ने लिया कि हमारे ऊपर ये चीज इम्पोज कर दी गई है। वी आर नॉट लाइक वी आर सिविलाइज्ड इनफ, वी आर टोटली सिविलाइज्ड, बट ये उन्होंने हमारे ऊपर मेंटलिटी डाल दी है। उन्होंने एग्जाम्पल उठाया किसका, E.M. फोस्टर का वर्क है तो अ पैसेज टू इंडिया, और सेकेंडली उन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी किसके ऊपर की, जो वर्क आप अभी पढ़ रहे हो, कौन सा, जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, दिस इज इन योर सिलेबस ना। उसका जो वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसमें एक वेस्टर्न पर्सन ने कैसे ईस्टर्न पीपल्स को प्रेजेंट किया है उसके वर्क के अंदर, वो उन्होंने शो किया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ओरिएंटलिज्म में क्या है, वी विल गो अ डीप स्टडी। ठीक है, जो भी आप लोगों को सेंड किया गया है या जो भी आप लोगों के पास मटेरियल है उसके थ्रू हम लोग एक डीप स्टडी करेंगे कि इसमें और टोटली इन्होंने क्या क्या पॉइंट उठाए गए हैं। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा कि आप लोग जो आप लोगों को भेजा गया है, नोट्स वगैरह भेजे गए हैं, उनको स्टडी करके आओगे और उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करके आओगे। क्लियर? यस।